Welcome to the second episode of The Oath and the Journey, the official podcast of JNMC DMIHR, where wisdom meets inspiration. Myself, Arundhati Lakhanpal, third year student at Jawaharlal Nehru Medical College. And in this series, we sit down with great visionaries and leaders of our university to explore their journeys, insights, and stories for their future of healthcare. Whether you're a student in Whitecoat, a budding researcher, or simply curious to know about lives of people in healthcare, this podcast is your front row seat to conversation that matters. So put on your headphones and join us. We discover the stories behind stethoscope. So today I'm really honored to have a distinguished guest who is having success story truly born out of our own campus. Sir is very visionary leader, respected academician, distinguished clinician, and outstanding administrator. So we are really grateful for you to be in our podcast. He is our very own Pro Vice Chancellor, Dr. Gaurav Ved Prakash Mishra sir, an alumni of MBBS 2006 batch, and MD in radio diagnosis in 2011 batch. Sir's journey from being roll number 41 to highest administrative office of a university is really recommendable, excellent and dedicated journey. So we are very privileged to have you here. Likewise, humbled. Thank you so much. And we are really looking forward to hearing some insightful, inspirational things from you. I will try my best. Yes, sir. So without any further delays, let's dive into the episode. Can you tell us one thing about yourself that students usually don't know? About me. Are you talking about me as a person or me as a Pro Vice Chancellor? Sir, you can tell both if you want. Okay. I think students से मेरा interaction काफी कम होता है. The reason being, I belong to a subject which is radio diagnosis. और आप लोग UG के बच्चे radio diagnosis कितना पढ़ते हो? तो it's like only you study for competitive exams. ये subject ultimately surgery में आता है, तो मेरा इतना interaction होता नहीं बच्चों से. So I think there are a lot of things which the students might not be knowing about me as a person. Well, to let you know, I used to be a left-handed guitarist. I have played in a band for say 1.5 or 2 years when I was an intern, and I love to write. कभी-कभी poems लिखता हूँ. I love to write couplets, quadruplets, जिसको गज़ल तो नहीं कहते, लेकिन हाँ शायरी कह सकते हैं आप, शेर कह सकते हैं, कविताएं कह सकते हैं. And a lot of it comes from our lifetime experiences, मेरे student time के experiences, बहुत सारी चीज़ें हैं. So I just want to tell our students that there are a lot of things which teach you, and there are a lot of things which make you. And yes, my student life was one of those experiences which made me into what I am today. What's the first thought that comes in your mind when you heard word student? Well, when the word student comes to my mind, the only thing which comes to my mind is potential, which is limitless potential. See, when we're talking about students, it's like a bubble of energy. A bubble of energy where inside that bubble there is a cocoon. That bubble itself is the cocoon, and there is limitless energy inside. And we as teachers, we have to direct that energy, we have to gather that energy, we have to channelize that energy into a particular direction. Wherever that energy wants to launch itself, wherever that energy wants to address itself, we have to address our students, we have to prime our students to learn to channelize that energy into that particular direction. So the ultimate essence of being a student is having something limitless, like limitless potential. Yes. So what's the funniest complaint or a doubt asked by a student in a viva or in classroom? Yeah, sure. Ultimately, when you belong to a minor subject, you don't have that many opportunities to assess students, to take examinations. But yes, COVID के lockdown तक के तो I was a very active lecturer. I used to take lectures. I used to take formative, summative examinations. Not summative ones, formative, yes. मैं हमेशा ना फाइनल ईयर पार्ट 1 पार्ट 2 के तब ओल्ड करिकुलम में क्लासेस लगते थे हमारे. 10 टीचिंग आवर्स होते थे. हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं, तो बीइंग एन एसोसिएट प्रोफेसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू गेट वन लेक्चर. तो माय एचओडी एट दैट टाइम वाज डॉक्टर धांडे मैडम. शी आस्क्ड मी कि गौरव तुम कौन सा सिस्टम पढ़ाओगे.
तो आई टोल्ड मैम आप आरएस दे दो, जीआईटी दे दो, एनीथिंग वुड डू. एंड आई वुड स्ट्रक्चर माई प्रेजेंटेशन, माई लेक्चर इनटू स्पॉटर्स, क्योंकि आप लोग स्पॉटर्स के हिसाब से पढ़ते हो. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पॉटर्स आते हैं कि आइडेंटिफाई द साइन, आइडेंटिफाई द डिसीज. तो मैंने जीआईटी का लेक्चर लिया था मेरे ख्याल से 2019 बैच, नहीं 2019 में, वो 17 बैच हुई शायद. तो उसमें एक स्पॉटर था जिसमें कि मैंने एक स्पॉटर में मैंने लिम्फोमा दिखाया था और उसकी नेक्स्ट स्पॉटर में मैंने एडिनो कार्सिनोमा दिखाया था ऑफ द कोलॉन. एंड आई हैड टोल्ड स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे. तो लिम्फोमा में देर इज समथिंग कॉल्ड एज सैंडविच साइन, क्योंकि आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड, जो लिम्फ वेसल रहते हैं आजू बाजू में रहते हैं. तो जब लिम्फ नोड में कार्सिनोमा आता है तो टेंड्स टू एक्सपांड, और वो आसपास की जो वेसल्स रहती है उनको सैंडविच कर देता है. तो मैं एग्जाम ले रहा था बच्चों की, तो यही कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था. एंड मैंने पूछा कि चल बेटा मेरे को पता सैंडविच साइन क्या है, दिस इज कॉल्ड अ सैंडविच साइन. तो इट वाज अ मेल स्टूडेंट, मैं नाम याद नहीं, शक्ल याद है मेरे को, लेकिन ही सेड कि सर आपने सिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस दिन बारिश बहुत आ रही थी. तो मैं बोला भाई क्लास के अंदर ध्यान दे लेता तो सैंडविच साइन भी याद रहता. तो मैंने उसको वहीं पे सैंडविच साइन करके बताया, समझाया उसको, तो बोला आप मत भूलना. That's great. That's really great. So my next question is, if you weren't in medicine, then what field you will choose? टफ क्वेश्चन. What you will be doing now? आई हैव हैड अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस इन मी. जब मैं छोटा था, मतलब 10th स्टैंडर्ड में था, तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर लाइक माय पेरेंट्स. फिर 11th में आया तो मैं जनरल साइंसेस लेके मैथ्स किया, तो आई स्टडीड मैथमेटिक्स इन माय 11th एंड 12th. डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन से भी पाला पड़ा है मेरा. 11th में आई वांटेड टू बिकम अ हार्डकोर इंजीनियर, और उस समय पे मुझे इसरो में जाना था, स्पेस में जाना था. और 12th में पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 12th से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, डॉक्टर बनना है. एंड उस टाइम पे तो आई हैड अ बेटर सेट ऑफ हेयर, एंड आई वाज इवन, आई मीन अभी जैसा भी हूँ तब मैं थोड़ा बेटर लुकिंग था, तो आई वांटेड टू बिकम अ फिटनेस मॉडल. उस टाइम पे रहता है, फ्लूक करके आता है सबको. So that's very ambitious. And yes, I had a liking towards arts, I had a liking towards music. I loved playing my guitar, I liked exploring music. तो अगर कहीं तो मुझे मेडिसिन में नहीं देखते, तो कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा फिटनेस मॉडल देख सकते थे समवेयर. अगर इफ लक वुड हैव हैव इट, इफ लक वुड हैव हैड इट, तो मुझे इसरो में कहीं पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट वगैरह देख Great सकते थे. scientist. हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मुझे किसी रॉक मेटल शो में परफॉर्म करते हुए देख लेते हैं. तो लॉट मेनी पॉसिबिलिटीज. You must have enjoyed that. Yes, I still do. I don't get the time, but I still do. So what inspired you to choose this specialty? To be very frank with you, I was not actually inspired by anybody or anything. देखो, जब फाइनल ईयर में आते हैं तब जाके थोड़ी समझ आती है कि यार कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या किया जा सकता है. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे निकल जाता है. फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थे इंटरनल मेडिसिन, इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड विद शौर्या सर तो इट वाज लाइक बस ये इंसान के जैसा ही पढ़ाना है, अगर पढ़ाने में गया तो, और अगर क्लिनिशियन बना तो इस इंसान जैसा क्लिनिशियन बनना है. तो एक्चुअली इंटरनल मेडिसिन वाज समथिंग व्हिच आई लाइक्ड रीडिंग, व्हिच आई लाइक्ड एक्सप्लोरिंग. और जनरल सर्जरी में, बॉडी काटने पीटने में, मुझे डिसेक्शन में तो मैं सबसे आगे रहता था. यू कैन आस्क माय बैचमेट्स आल्सो जो मेरे टेबल पे रहते थे. बट यार रात में सो के उठ के एकदम कोई ऐसे ट्रॉमा का केस आ गया तो यू वुडंट लाइक टू, और यू वुडंट चूज टू ऑपरेट ऑन समथिंग लाइक दैट. ऑब्स गायनी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कभी इतना पसंद आया नहीं मुझे. पीडियाट्रिक्स मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन का ही गुटका है, मतलब छोटा फॉर्म है. और बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार मेडिसिन ही ठीक है. तो आई वांटेड टू बी इनटू मेडिसिन. फिर पढ़ाई करी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू रेडियोलॉजी जस्ट बाय चॉइस. मार्क्स अच्छे मिल गए, अपॉर्चुनिटी थी. तो ऐसा भी समय था कि हमारे पापा लोग का समय था जब रेडियोलॉजी वाज नॉट सो पॉपुलर. बट आपके और हमारे समय में रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, दीज बिकेम्स लाइक एंड गेम्स, मतलब टॉप नॉट सब्जेक्ट्स हो गए. तो व्हाई नॉट. Nothing in specific, but yes, it was a good choice, I feel. Yes. So what's the one misconception about your subject? My subject. Yes. Being a radiologist, I too often find myself in a soup when you get that classification कि आप clinical इंसान है या non-clinical इंसान है. So being at the diagnostic end, and moreover हमारे पास patients diagnosis के लिए CT, MRI, ultrasound करने के लिए आते हैं, but finally जाते हैं हमारे pathologist के पास है. तो gold standard pathology होता है. बट एक मिसकंसेप्शन मैं ये क्लियर करना चाहूँगा रेडियोलॉजी का कि भले ही रेडियोलॉजिस्ट का काम इन सो कॉल्ड एसी चेम्बर्स में बैठ के रिपोर्टिंग करना होता है, बट यहाँ पे जो चैलेंज होता है कि कौन सा डायग्नोसिस है, क्या डायग्नोसिस है, एंड रनिंग थ्रू द फाइल्स ऑफ द पेशेंट, की पेशेंट की हिस्ट्री क्या है. नॉट मेनी पीपल डू दैट. मैं भी कभी
किसी ज़माने में नहीं करता था इतना हिस्ट्री के ऊपर में एम्फेसिस, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमेशा ये बताया कि यार हिस्ट्री कैरीज हाफ द डायग्नोसिस। विलियम ऑसलर ने कहा था कि इफ़ यू हैव टेकन अ प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ योर पेशेंट, प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, वो जब पेशेंट आपको खुद चीज़ें बताता है तो आप आधा डायग्नोसिस कर लेते हो। बट रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो डायग्नोसिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मनी मिंटिंग सब्जेक्ट, विच इज़ नॉट द केस। डिपेंड करता है अपॉन अ लॉट ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स विच आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन इन दिस वीडियो। I chose to be an academic person because it helps me, be attached to my roots. मिसकंसेप्शन तो इसमें कहीं आया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसकंसेप्शन ये कि रेडियोलॉजिस्ट इज अ मनी मिंटिंग पर्सन, कुछ हद तक सही होगा भी। आई एम नॉट एनीबडी टू कमेंट ऑन दैट, बट बीइंग एन academician, you don't get that money minting opportunity because you get to dedicate yourself in teaching students, in delving into your own subject, in delving into what pathologies you discover. I mean, what are the science you discover, what are the science you come across patients, and you correlate your own findings with the new findings. तो एज फार एज मिसकंसेप्शंस को मैं इतना ही कहूँगा कि रेडियोलॉजी को टॉप नॉच, इवन आई डू नॉट नो व्हाई दे थिंक ऑफ इट एज अ टॉप नॉच सब्जेक्ट। इसमें ऐसा कुछ टॉप नॉच होने लायक है नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक एन एंसिलरी सब्जेक्ट। मेन तो बस हमारे इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी वाले लोग होते हैं जो एक्चुअली पेशेंट्स को देखते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। हाँ, उनकी ट्रीटमेंट आउटकम्स हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव अ सेट ऑफ डिफरेंशियल्स इन देयर माइंड जिसको उनको नैरो डाउन करना रहता है। तो देयर वी कम इन टू प्ले कि सर हमको ये 3 चीज़ें लग रही हैं, आप देखो आपके हिसाब से क्या है। तो I mean, we are like, facilitatory people rather than money minters. So that is all, like, I'd like to clear that misconception around my subject. Yes, sir. So if you could change one thing in MBBS curriculum, what would it be? Curriculum में इंटरेस्टिंग। मेरा बस चले तो मैं थियरी को प्रैक्टिकली बना दूँ पूरा। सी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग, देखो हमारी 2006 बैच वाज द सेकंड बैच ऑफ आवर डीम टू बी यूनिवर्सिटी। उसके पहले हमारी 2005 बैच जो थी वो फर्स्ट बैच थी। लेकिन उनको एडवांटेज ये था कि जो पहले MUHS में एफिलिएशन था यूनिवर्सिटी का, तो उनकी एग्जामिनेशन की जो स्कीम थी वो उनकी जैसी थी। हमारी बैच में हम लोगों ने हर एक साल में एक नया सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, मतलब नया सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का एक नया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के 100 मार्क्स के पेपर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। फिर सेकेंड ईयर में आया तो फिर अगेन 80 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए सारे, पेपर 1 पेपर 2। पैथोलॉजी बिकेम 80-80, फार्मैक बिकेम 80-80। सिर्फ FM था जो हमारे को 80 मार्क्स का सिंगल सब्जेक्ट था। फिर थर्ड ईयर में आए तो अगेन PSM बिकेम 120, ENT और ऑफ्थैल्म 80-80, और फाइनल ईयर में फिर सारे बड़े सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स छोड़ के 120 हो गए। तो वो 3 घंटे में 120 नंबर का पेपर कैसे लिखना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सो फॉर दिस सेम रीजन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों को, आप लोगों को, you have to choose in between theoretical and practical. See, I don't say that theory is something baseless. Theory is the base, theory is the foundation. But then, what our contemporary learner, I'm not saying lacks, but what he or she needs to be a professional, a medical professional is, कल जाकर के आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया जहाँ पे आपको ये चूज करना है कि मेरे को कोई हिमलिक मैनूवर वाला पेशेंट आ गया, उसके गले में कुछ अटक गया है, उसके साथ मतलब एयर पाइप में कुछ अटक गया है, यू वांटेड टू गेट एक्सपेल्ड, तो यू वांट टू नो हाउ टू डू द हिमलिक मैनूवर थ्रू साइकोमोटर स्किल्स। यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स तब काम आएंगे जब आपको मालूम है कि ठीक है ये इंडिकेशन है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बट एक्चुअली हाउ टू डू दैट प्रोसीजर, यू नीड टू एक्चुअली उसको अपने सेकंड मेमोरी बनाना कैसे। सो दैट कम्स इनटू द साइकोमोटर डोमेन। मेरे हिसाब से कॉग्निटिव डोमेन विच इज थियरी, इट फॉर्म्स द बेस, बट यस, एग्जामिनेशन शुड बी ऑन अ लिमिटेड पेडेस्टल। हम लोगों ने बेसिकली साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड सिनेरियो, सिमुलेशन इज ऑल अबाउट दैट। आप लोगों की सिमुलेशन में पोस्टिंग होती है, देयर यू गेट टू डू दैट प्रोसीजर एक्चुअली। जैसे हमारे यहाँ सिम मैन है, सिम मॉम है, वहाँ पे जो भी आपकी, जैसे ICU की हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज है, देयर द ब्यूटी इज नो लाइफ इज एट रिस्क, बट आपको रियल वर्ल्ड की जैसी सिमुलेटरी कंडीशंस दी जाती हैं, देयर यू गेट टू लर्न वेयर टू डू, हाउ टू डू व्हाट, and what not to do and why not to do. So, the psychomotor domain carries a lot of importance in our profession. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर थियरी को बेस बना करके, मुझे एक वाकया याद आता है। मेरा एक सीनियर था, he was he did not pass with the regular batch, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। he said, मिश्रा मुझे कार्डियक साइकिल समझा। मैं थर्ड ईयर में था आपके जैसा, एंड ही was studying for his final exam of physiology for first year। तो मैंने बोला सर आप मुझे एक बार दे दो पढ़ने के लिए, मैं आपको एक रिब्रश करके अच्छे से फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा। तो आई एक्सप्लेन इट टू हिम यूजिंग अ फ्लो चार्ट, आई टुक सम 15-20 मिनट्स, और वो कह रहे थे कि मिश्रा मेरा पेपर है, जल्दी समझा। तो शायद उनका 10 बजे का पेपर होगा, हम लोग सुबह 7:30-8 बजे मिले। तो मैंने सर को समझा दिया, सर ये 0.8 सेकंड की होती है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 प्रोटोडायस्टल, ये वो।
पेपर हुआ उनका 1 बजे बाहर आए, तो सबसे पहले मेरे को आके लाइब्रेरी में पकड़ के बाहर ले गए कि मैं डर गया, क्या हो गया? तो ही सेड कि भाई तेरे कारण मेरा एल्टीट्यूड सुधर गया, प्रोटोडायस्टोल वगैरह जो भी तूने बताया था कार्डियक साइकिल में वैसा का वैसा लिख के आया हूँ, एंड ही पास्ड। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अल्टीमेटली वो थियरिटिकल एग्जाम था और सब्जेक्ट भी थियरिटिकल था, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर थियरी का कंपोनेंट प्रैक्टिकल में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, जैसे कि हम सिमुलेशन की बात करते हैं, तो it would be better for our learners to be, more in competence and more in competition than, as compared to the international medical graduate. From Indian medical graduate to the international medical graduate, कहीं ना कहीं ये फर्क आता है, क्योंकि आज भी अगर आप देखो ना, हमारा इंडियन मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम इज मोर टुवर्ड्स द थियरिटिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। कुछ गलत नहीं है बॉस, पर वी हैव टू गिव इक्वल और परहैप्स मोर वेटेज टू द साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि कल जा करके अगर कोई इमरजेंसी आती है आप लोगों के सामने, नो बडी विल आस्क यू कि बेटा तेरे को गोल्ड मेडल मिला कि नहीं मिला। दे विल मॉनिटर योर एफिशिएंसी ऑन हाउ क्लीनली एंड हाउ परफेक्टली यू डू योर स्किल्स। उसके बाद पेशेंट का बचना तो ऊपर वाले के हाथ में, बट हमारे हाथ में ये कि हम ट्राई करें कि उसके प्राण हमारे हाथों बच जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि थियरी में अभी जितना ध्यान दिया जा रहा है, अगर उसी को हम लोग नेक्स्ट इज ऑल अबाउट दैट, जो हमारी लाइसेंशिएट एग्जामिनेशंस के ऊपर में डिस्कशन हो रहा है एनएमसी के स्तर के ऊपर में, that is something which is taken from the Western world. The main difference of the Western world is, they know the importance of the psychomotor domain over the cognitive domain. इसीलिए वहाँ की MBBS में ज़्यादा साल होते हैं, वहाँ के PG में ज़्यादा साल होते हैं, where the students, where the learners get more hands-on experience to deal with such kind of patients. तो मुझे ऐसा लगता है कि practical skills, clinical competence, and for that matter, which has to be built upon the base of cognitive skills, they should be given more importance. और कहीं ना कहीं इसमें we need to think about maybe modifying our scheme of examination, जिस तरह से हम हमारे लर्नर्स को, आप जैसे होनहार विद्यार्थियों को आगे की स्किल्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं, we will get a better chance to define you and refine you in a better way this way, by giving more importance to practical skills. So that was very insightful. So my next question is, so what is that one clinical case that made you change your way you see medicine? There are two actually. मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 2016, मेरे ख्याल से 2015 दिसंबर या 2016 की जनवरी की बात है। आई वॉज वर्किंग अंडर डॉक्टर पंकज बनोदे सर एज अ फेलो इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और तब ऐसा होता था कि फेलोज़ ने, जो अभी भी ऐसे ही होता है, मतलब पहले जो माइनर प्रोसीजर्स रहते हैं वो पहले आप ऑब्जर्व करते हो, देन यू आर, आपका 360 डिग्री फीडबैक आपको इनडायरेक्टली मिलता है, आपकी नर्स आपको ऑब्जर्व करती है, आप सर आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके सीनियर्स पीयर्स सब आपको ऑब्जर्व करते हैं, देन डिसाइड होता है कि यार इसको अकेले प्रोसीजर करने देना है कि नहीं देना है। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि वी वर 3 फेलोज एट दैट टाइम, और मेरे दोनों फेलोज मुझसे सीनियर थे। एक फेलो अपनी एक्सटर्नशिप करने के लिए मेरे ख्याल से कहाँ गए थे, CMC वेलोर गए थे, ही वॉज फ्रॉम यूपी, एंड द अदर फेलो वॉज हैंडलिंग दी OPD। तो मैं OT में अकेला था, एंड सर वॉज विथ मी, पंकज सर वॉज विथ मी। तो मैं बहुत टेंशन में था। एक्चुअली द केस विच वी वर हैंडलिंग वॉज ए केस ऑफ HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसकी CT हमारे सामने थी, उसका अल्ट्रासाउंड हमारे सामने था, एंड द CT वॉज नॉट CT एंजियो, तो उसमें तो फीडर दिख जाता है। तो सर ने बोला था कि यू गेट अप टू द फीडर वेसल एंड देन आई टेल यू व्हाट टू डू। तो आई वाज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस कि यार मैंने नेविगेट करके जाना है। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आई वाज, तो लॉजिकली वे क्या होता है, पेशेंट लाइज सुपाइन और आपने उसकी सुपीरियर फीमोरल आर्टरी पंचर करनी होती है, देन यू हैव टू गो टू द एओर्टा थ्रू आई मीन इलियक आर्टरीज, एंड देन जो सीलियक ट्रंक होती है, वी यूज अ कैथेटर विद दिस शेप, कोबरा कैथेटर। तो वो सीलियक ट्रंक इज एंटीरियरली फेसिंग, तो वो हुक होती है, हुक हो गई मेरी एक बार में। सो दैट वाज लाइक, आई वाज वेरी एक्सटेटिक, एंड सर वाज सिटिंग ऑन स्क्रीन, सर बाहर ही थे, जो DSA का मॉनिटर होता है उसमें बैठे थे, एंड देयर इज अ माइक सिस्टम कि हम लोग जो बोलते हैं उनको सुनाई देता है और वो जो बोलते हैं हमको सुनाई देता है। तो तब सर के 2 शब्द थे, वेरी गुड वारो। तो वो मेरे लिए बहुत एक मतलब मायने रखते थे, एंड दैट प्रोसीजर वेंट ऑन वेल। फिर सीलियक ट्रंक से हम लोग प्रॉपर हेपेटिक में गए, प्रॉपर हेपेटिक से फिर एक फ्लश करके देखा, इट हैड ओनली 1 आर्टरी का सप्लाई था उसको, राइट हेपेटिक। तो सुपर सिलेक्टिव एम्बोलाइजेशन में आई वाज एबल टू कैनुलेट सुपर सिलेक्टिवली द राइट हेपेटिक आर्टरी, एंड देन सर केम, सर टॉट मी हाउ टू मेक दैट, डॉक्सोरूबिसिन के साथ में ग्लू चाहिए तो ग्लू क्यों चाहिए, और अगर ऑनिक्स चाहिए तो ऑनिक्स, दीज आर एंटी एम्बोलाइजिंग एजेंट्स। तो सर एक्सप्लेन्ड मी कि व्हेन डू यू यूज ग्लू, व्हेन डू यू यूज ऑनिक्स। तो दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट।
बिकॉज आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट समथिंग कि यार ये इतना बड़ा केस है, लिवर के HCC का केस, और मैं अकेला एज अ फेलो हैंडल कर रहा हूँ. दो सर वॉज विद मी, OT में मैं अकेला था. प्रणय सर वॉज देयर विद मी. प्रणय गवी सर, ही वॉज अ जॉली गाय. I mean, right now he's not working with us, but he was a technician person who had brilliant knowledge about whole body anatomy, contrast, कब क्या देना, इतना मतलब एक्सपीरियंस इंसान था वो ना. तो experiential learning was something I got from him, and instantaneous learning is something which I got from Pankaj Banote sir. So my hats off to both of them, and for letting me handle that very important case, Pankaj sir, especially thanks to you. Yes, sir. That was nice. So my next question is, how do you feel of being in part of university administration? In simple word, if you could define, rather than being just a medical practitioner or a lecturer. One word is overwhelming. See, um, I am more of an academician kind of a person because I have been bred that way. I have been born and brought up that way. Um, being an academician lets you explore the academic side of a subject. Being a radiologist, yes, I think that academics is not that much, explored in a midway subject like radiology, where you get to call yourself as a clinical subject as well as a non-clinical subject. So I saw a lot of opportunity being a radiologist in delving into the academic part of it. And the academic part of radiology is basically nothing else than research, case reports, original research, original articles, review articles. And this I realized much late in my career. Then I had joined back my department of radiology. I said, Pankaj sir, ki sir, IR मुझसे हो नहीं पाएगा. With due respect, don't take it otherwise, sir. Sir said कि you are taking a big step. Think about it. No, sir, I have thought about it, but I would like to go back to radiology. And I mean, that was one moment which told me that there is more to academic side of radiology. There is more to the hidden part of your subject. The textbook only teaches you what is there in existence, but research makes you run helter and skelter about it, gather something from one page, gather something from another page, fuse it, try it, observe the patient, and come with something new. And that is what research teaches you, that whatever is existing, how can you make something new from whatever is existing, whatever you have in your hands. So that was something, an outlook and insight, I will say, that propelled me forward into the direction of research from the year 2019-20, then onwards. I completed my PhD in the year 2018. That was my first step into research in the subject of radiology. And let me tell you very frankly that the year 2019 was the year when I took up admission in my second PhD, that is in health professions education, which I successfully completed in 2022. So that was another step which I took as a launchpad into research. And I tell you, research is a lifestyle. It changes your views about things and it teaches you to be more patient, which I was not actually. So that's it. So, what is the most common mistake that students make during exams and postings? Mistake. आई थिंक मेरा UG से इतना लिंक आता नहीं है, बट वेन एवर आई कम इन कॉन्टैक्ट विद माई पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स, क्योंकि वही लोग एग्जाम्स में हमारे पास में पूछते हैं कि सर ये आंसर, ये क्वेश्चन आया तो कैसे लिखें, वो क्वेश्चन आया तो कैसे लिखें. सो आई ऑलवेज टेल देम दैट यू डोंट नीड टू मग अप द आंसर्स. अगर आपको एक्सेल ट्यूब के पार्ट्स प्रॉपर सीक्वेंस में पता है तो आप उनके फंक्शंस समझो तो लिख सकते हो. सो मेरा हमेशा मेरे बच्चों को यही कहना रहता है कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन योर टेक्स्ट बुक एंड व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू. अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हो ना, you can write your subject, you can write your answer in your own words, in your own flow of thoughts. What people do is कि वो मतलब उस चीज़ को रट्टा मारेंगे, मगअप करेंगे. कुछ हद तक के रट्टा मारना ठीक है. जैसे कि अब यार क्रेब्स साइकिल, आप उसमें क्या ही समझोगे, उसमें स्टेजेस हैं और बीच में एंजाइम्स है. एंजाइम्स का नाम में क्या कंसेप्ट आता है. सो सम थिंग्स आर देयर फॉर रोट लर्निंग, बट when you come to a subject like internal medicine, like general surgery, where you have to sequentially and chronologically learn things, you need to understand the link between step 1 and step 2. So there lies the concept. अब कंसेप्ट के पीछे जाओगे तो मैं हमेशा बच्चों को नहीं बोलता था कि सर इसमें अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है किसी भी क्वेश्चन का. तो एक जेनरिक टिप है हर किसी के लिए, अगेन फॉर थियोरेटिकल आंसर्स एंड फॉर कंसेप्चुलाइजिंग योर MCQs. कोई भी स्टेप है या कोई भी प्रोसीजर है, कोई कुछ भी है, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स. और वो स्टेप्स का एक आप अपने मेंटली फ्लो चार्ट बना लो, या अगर नोट्स बनाते हो तो अपने बुक के आजू बाजू स्टिकी नोट्स आते हैं, या फिर अपनी किसी कॉपी में नोट्स बनाते हो तो ऑलवेज मेक 1 2 3 4 5 6 ये स्टेप्स बनाते जाओ. ये आपका मेंटल मैप है, ये आपका माइंड मैप है. इट इज इंडिविजुअल टू यू. वो बुक में कैसा दिया है वो छोड़ दो, बट हाउ यू अंडरस्टैंड इट,
दैट इज हाउ यू क्रोनोलॉजिकली राइट इट इन योर नोट्स, क्योंकि आप ऐसे याद रखोगे तो हमेशा कंसेप्ट के पीछे जाओ, रटा मत मारो। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू फील दैट आपको कोई भी किसी भी चीज़ में उस चीज़ से क्वेश्चन आया तो यू आर एबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि व्हाई इज इट द वे इट इज। सो कंसेप्ट मैटर्स। Yes, that was truly interesting. So, if you were a student in our place today, what would you do differently? इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपके जैसा स्टूडेंट होता आज तो यार आप लोग के ऊपर में बहुत ज़्यादा लोड है, मैं मानता हूँ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर, आई विल नॉट से थ्रस्ट ऑन यू, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे टाइम में कोर्सेरा नहीं होता था, हमारे टाइम में इस तरह के अदर कोर्सेज नहीं होते थे, बस एग्जाम में ये चीज़ करनी है, ये पढ़ो लिखो प्रैक्टिकल दो पास हो आगे बढ़ो। सो यू पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट नाउ। मुझे लगता है कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे ना शिफ्ट करके, इफ़ योर फ्यूचर इज कंसर्न, आप लोग रिसर्च पे ध्यान दो। देर इज डाइकोटोमी इन टुडेज यूजी लर्नर्स कि हम रिसर्च करें तो क्यों करें। बच्चों, मुझे एक बात कहने में एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ, आई हैव सीन जॉब इंटरव्यूज नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली जहाँ पे लोगों के मार्क्स मायने नहीं रखते। यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर इन वे कि आप अगर यूजी में हो तो आपके, इवन इफ यू हैव वन केस रिपोर्ट और अ क्लिनिकल इमेज पब्लिश्ड इन अ बिग जर्नल, obviously you will receive guidance from your professors, from your seniors, that's not an issue, बट आपकी रिसर्च प्रोफाइल आज ज़्यादा बड़ी आवाज़ रखती है सिर्फ आपके मार्क्स या आपके गोल्ड मेडलिस्ट होने से। I have seen AIMS job selections. I have seen job selections in some foreign universities just on the basis of their research profiles. So मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन ये है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने मार्क्स की तरफ दुर्लक्ष ना करते हुए, see, don't go for the top notch in marks, but go for being a good researcher. Develop that outlook. Try to develop a writing flair. I know you guys are very good at absorbing things. आज के दौर में जब आपके पास information at your fingertips है, and you guys are very good at imagination, creativity, coming up with new forms of data representation, आजकल आप लोग क्या नहीं करते। सो थोड़ा सा अपना जो फ्लेयर ऑफ थॉट है ना, रिसर्च में किस तरह से अच्छी तरह से आप केसेस लिख सकते हो, किस तरह से आप उसको अपने वर्ड्स में अच्छी तरह से यू नो मैश करके उसको प्रेजेंट कर सकते हो, and you can fetch good number of publications, quality of publications for that matter, because quality of publications and number of publications are with you for life, at least for your lifetime, right? तो कल जा करके अगर आप यूजी में एमबीबीएस में पास होकर के कहीं पे जस्ट फॉर आजकल तो हर किसी को पीजी चाहिए होता है, बट इवन इफ यू चूज टू चेंज योर lines of profession, if you plan to go for USMLE or if you plan to go for PLAB, your research profile still has a say over there. आपने कितने पब्लिकेशंस किए हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स योर एनालिटिकल स्किल्स, नॉट जस्ट कॉग्निटिव स्किल्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अपने पब्लिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देता, क्योंकि मेरा पहला केस रिपोर्ट पब्लिश हुआ तब मैं शायद सेकेंड ईयर पीजी में था। पर टुडे एज यूजी स्टूडेंट्स मुझे मालूम है आपके ऊपर में थ्रस्ट की जाती है चीज़ें कहीं किसी ना किसी रूप में कि केस रिपोर्ट लिखो, क्लिनिकल इमेज लिखो, बट दैट इज़ नॉट फॉर जस्ट इंक्रीजिंग नंबर और बस हमको नंबर्स मीट करना है इसके लिए नहीं। बट व्हेन यू ग्रो अप, यू गो फर्दर अप इन योर करियर, यू विल रियलाइज दैट यार इससे फ़ायदा हो रहा है। सो इट इज़ फॉर दैट टाइम जब आपको किसी चीज़ से जो आपने कभी करके छोड़ दी, रिसर्च में इंटरेस्ट ना हो, आपने केस रिपोर्ट लेके छोड़ दिया, लिख के छोड़ दिया, पब्लिश करके छोड़ दिया, एंड देन समवेयर इन फ्यूचर कल जाके अगर आप कार्डिफ में जाओगे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, एनएचएस में आपका सिलेक्शन होता है और तब आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे से बंदे ज़्यादा क्वालिफाइड थे लेकिन मेरी रिसर्च प्रोफाइल के कारण मुझे जॉब मिली। सो देन यू विल काइंड ऑफ थैंक योर सेल्फ कि यार ठीक है कर ली थी केस रिपोर्ट, बीएमजे केस रिपोर्ट में छप गई। सो एवरीथिंग यू डू कैरीज its own weight and it reflects when it is needed the most. Yes, so that was so knowledgeable. I guess you guys must have got research insights. So my next question is like for students especially, how to balance personal life with medical stress? मेडिकल स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस ऐसा है कि इट्स लाइक अ मार्श, दलदल है, आपको स्ट्रेस कभी नहीं छोड़ती, एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज बिल्ड डिफरेंट। आई एम बिल्ड डिफरेंट, अरुंधति इज बिल्ड डिफरेंट, यू आर बिल्ड डिफरेंट। यू हैव टू मेक अ फ्रेमवर्क, अ मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ योर ओन बाय ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने थॉट्स को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। वी टेंड टू गेट फ्लोन विद आवर थॉट्स, इवन आई डू, एनी नॉर्मल पर्सन वुड गेट फ्लोन विद द थॉट्स। सी, first of all, you picture what you want in your life. You want mental peace, you want professional security, there are a number of things which people want. So try to build your life around what you want.
और एक मास्टर टिप दूंगा आपको मैं, जो कि मैंने गौतम बुद्ध से पढ़ी हुई है. देर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, one which you can control and one which you can't. It applies to me as well. There are some things which I can control, there are some things which I can't. Map the things which you can control, spend all your energy on which you can control, on the things which you can control. And if anything is bothering you which you can't control, let it slide. Don't spend your energy on it, because वो आपकी एनर्जी ना ड्रेन कर देगी. बिकॉज आप अपनी एनर्जी उस पर खर्च करते रहोगे कि यार ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ. Can you actually do something about it? If yes, if you can control it, if you can influence it, spend your energy, save your energy for it. But if you can't control anything, होने दो जो होना है यार, let it slide, but conserve your energy. And this mentality, this mindset, when you build slowly, it will come slowly, it comes by age. मैं आपकी उम्र में जितना impatient था, आज शायद मैं उससे थोड़ा कम impatient हूँ, थोड़ा सा पेशेंस आ गया. दे से दैट मैच्योरिटी कम्स विद लाइफ. मेरे सीनियर्स हैं, एकेडमिक स्टालवर्ड्स हैं, मेरे पितृतुल्य लोग हैं यूनिवर्सिटी में. देयर इज समथिंग व्हिच God teaches us, which time teaches us, which our teachers teach us, which our seniors teach us. आरिफ सैफी नाम का एक शायर है, उसने कुछ लाइंस बोली थी, तो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा. ही सेज, सर, उर्दू में है, सर बुलंदी का एक वजीफा है. सर बुलंदी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स विद अ टॉल स्टेचर, एंड वजीफा इज लाइक अ नुस्खा, एक तरीका, ये जैसे एक फॉर्मल होता है आपका. सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सर बुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है. अपने आप को छोटा समझते रहिए, बड़ा बनने का यही एक तरीका है. सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, वर्क हार्ड, टॉयल हार्ड, इन ब्रैकेट पार्टी हार्ड, बट खुद को 30 मार का नहीं समझने का, खुद को जमीन पे रखने का, हम्बल रखने का, और फिर जितनी लंबी उड़ान भरना है भरो. Whole sky is yours and sky is the limit, right? So all the best to you. Sure, sir, we'll follow this tip. So my next question is, like, for us students, how to pursue, like, what is the golden tip to pursue residency or for higher studies? Higher studies. What I encountered in my profession is, जब मैंने MD पास की और गोल्ड मेडल के साथ पास किया, तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा, नाउ यू शुड ट्राई फॉर FRCR. इंडिया में कुछ नहीं रखा है. And I said that I'll not go through those grueling studies again. Papa, please tell me something else. So he said, फिर IR में कुछ करो. So I did my fellowship in IR. Then again he said that now FRCR करो. तो मैं, पापा नहीं करना मुझे FRCR. तो he said कुछ और करो. तो मैंने जिद में PhD कर ली. PhD के साथ MPhil भी कर लिया. So मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको समय के साथ your subject, your mind, once you have that mental framework, that mindset and balance कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, this automatically comes to you that मुझे, even in residency also, there are a lot of things going on around you in the department invisibly. और आपके परसेप्शन में कोई चीज़ आती है, किसी को फेवरेटिज्म मिलता है, किसी को नहीं मिलता है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ह्यूमन साइक है. हम लोगों को एक तो पेशेंस डेवलप करना चाहिए, दूसरा हम लोगों को अपने आप से ट्रू रहना चाहिए कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हमारे से ना हो जाए कि हमको कल जाके हम जब खुद को आईने में देखते हैं तो हमको शर्म आए. अपना कॉन्शियस क्लियर रखो, एंड जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन टू. किसी को पता है, दे हैव वेरी गुड मोटर स्किल्स. In my case, in radiology, I have seen how Pankaj sir operates his cases, and they come out flawlessly treated. और उनके जितने IR के हम लोग सब निकले हैं उनके हाथ से, तो भगवान की दया से everybody is very good wherever he or she is professionally practicing. तो understand what you're good at. Understand what you're good at, and अपने सारे माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा दो कि हमने कौन सी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है. अपने आप को रिफाइन करते चले जाओ, अपने आप को फोकस करते चले जाओ, एंड देन यू विल बी एबल टू लॉन्च योरसेल्फ लाइक अ कॉमेट. तो इट टेक्स टाइम, बट you need to spend that time with yourself to know about yourself. Yes, this is my cup of tea and this is where I am going to prosper. Yes, sir. I hope everyone who is watching will always find their cup of tea. So, sir, now we will start for life stories and little bit about personal side. Sure. So, who was your own favorite teacher and what was subject? MBBS और मतलब UG और MD में तो मेरा कोई एज एन फेवरेट टीचर रहा नहीं. हमारे 11th-12th में केमिस्ट्री की मैम होती थी, डॉक्टर नहीं, मिसेस दीप्ति गढ़िया. शी लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन माई माइंड जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. मैम बहुत अप्रोचेबल थे, और केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो केमिस्ट्री पहली बार में वो डबल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब समझ में आता नहीं था.
तो कई बार वी यूज टू अप्रोच हर एज अ ग्रुप कि मैम ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो. शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ. और कभी कभी रिसेस में भी मैम खाना वाना खाते रहते थे, तो हम लोग मैम्स को खिड़की नॉक करके पूछते थे मैम एक डाउट है, तो शी यूज टू लीव हर टिफिन देयर एंड शी यूज टू कम टू एक्सप्लेन अस. तो वो बहुत मतलब शी वॉज वेरी मॉडेस्ट, वेरी काइंड, वेरी हम्बल. तो मैं फेवरेट टीचर तो गढ़िया मैम को ही बनाना चाहूँगा. राइट नाउ शी इज़ नॉट दीप्ति गढ़िया एनी मोर. आई थिंक शी इज़ दीप्ति मालविया. तो मैम, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द विशेस टू यू. I'm sure ma'am will see this. So my next question is, what was the turning point of your career? टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर, एक पॉइंट तो मैंने आपसे शेयर किया कि वो लिवर का HCC का केस था, विच काइंड ऑफ गिव मी दैट शेडिंग ऑफ अ लेयर ऑन माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक वो था. एंड देर इज़ वन मोर इंसिडेंट. मैं जस्ट MD पास हुआ था एंड आई वॉज पोस्टेड इन CT, कंप्यूटर टोमोग्राफी का जो हमारा इमेजिंग मोडालिटी का सेक्शन है, वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग के लिए बैठा था. इट वॉज आई थिंक 11:55 AM. एक केस आया हेड ट्रॉमा लेके, और उसके सर में सूजन थी, ब्लीडिंग नहीं था कुछ. CT हुआ एंड उसको देयर वाज समथिंग लाइक बाइकॉन्वेक्स थिंग इनसाइड द स्कल. एंड मेरे ख्याल से राइट फ्रंटल रीजन में था. तो मैंने उसको उसका आया यूरिया क्रिएट वगैरह रेस था. तो नॉर्मली ट्रॉमा की सेटिंग में हम लोग कॉन्ट्रास्ट नहीं करते, बिकॉज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसको हेड ट्रॉमा हुआ है तो कहीं ना कहीं देयर माइट हैव सम ब्लीडिंग इनसाइड. तो मैंने उसको एपिड्यूरल हिमरेज दे दिया. एपिड्यूरल हिमरेज का सिंपल फंडा होता है, बाइकॉन्वेक्स दिखता है, दोनों साइड से C शेप लीजन दिखेगा आपको. लीजन नहीं, स्पेस ऑक्यूपाइंग हिमरेज होता है. तो मैंने उसको दे दिया एपिड्यूरल हिमरेज. देन अ वीक लेटर, अब दे के भूल जाते हैं, दैट केस अगेन केम टू मी. एंड ऐसा था कि अगले महीने मैं MR में पोस्टेड था एंड दैट केम टू बी अ मेनिंजियोमा. तो मैंने कहा कि यार ये केस तो उसमें रिपोर्ट तो मेरी लगी है, मैंने इसमें एपिड्यूरल हिमरेज दिया, इसको मेनिंजियोमा कैसे निकला. तो द क्लिंचिंग फैक्टर वाज दैट वो कॉन्ट्रास्ट दिया गया उसको MR में, एंड इट केम आउट टू बी अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन विच वाज गिविंग टेल साइन जिसको कहते हैं, वो एक्स्ट्रा कैलवेरियल लीजन्स में दिखता है, एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन्स में दिखता है. तो इट वाज, मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से ब्लंडर था, बट सीइंग माय कंडीशन, अगर आप किसी नए नवेले सीनियर रेसिडेंट को मेरी जगह रख के देखो, भाई तेरे पास कॉन्ट्रास्ट भी देने का मौका नहीं है. तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे तरफ से ब्लंडर हुआ था. बट हैड इट बीन कि मुझे कॉन्ट्रास्ट देने मिल गया रहता था, अगर उसके सीरम यूरिया क्रिएट नॉर्मल होते, तो आई वुड हैव गिवन इट एज अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन दैट राइट हेमिस्फीयर, राइट फ्रंटल रीजन. तो उस ज़माने में हमारे एक बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे. तो मेरे सामने की बात नहीं, मुझे किसी से सुनने में आया था कि ही सेड, मैं नाम नहीं लूँगा, दिस इज़ हाउ गोल्ड मेडलिस्ट रिपोर्ट. तो मुझे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि ऐसे भी गलती होती है जब बड़े बड़े लोग भी मुँह के बल गिरते हैं. तो हाँ, मैं हूँ उनके, मतलब उनमें से एक ज़रूर हूँ. और यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. Yes. Yes, sir. I guess we all will learn from our mistakes. Yes, So, and just adding to it, people take failure as the last resort. Resort नहीं कहूँगा मैं, last milestone जिसको कहते हैं. yes. But if you must have read the Kalam effect या फिर Wings of Fire जो हमारे कलाम साहब की autobiography है, he says that fail is FAIL, first attempt in learning, and it is a proof that you're trying hard. So never be deterred by your failure, never be deterred by how many times you fail. There will be coming a point of time in your life when you don't fail anymore, and perfection is your second skin, right? So keep that in mind. Yes, sir. We'll all follow this golden tip. Sure. So my next question to you is, what is the thing that you do except medicine that brings you joy? I mean, your passion and all. There are a lot of things. I tend to read a lot these days. I tend to listen to various shero shairis. I tend to read a lot about our religious texts. I tend to read a lot about big people's biographies. Have a look on Theory of Relativity written by Albert Einstein. I have read Stephen Hawking. Um, I have read Max Planck. I have read Mahatma Gandhi. And there is a lot of regional literature available on Mahatma Gandhi ji as well. Here, if we go to Bapu Kuti and Pavnarayan, various languages. So, if you would not have found me as a medical doctor, you would have found me as a fitness model. Things would have went their own way. You would have found me somewhere as a scientist in ISRO, if luck would have had it. If luck would have had it, you could have seen me as a anywhere like किसी मुशायरे में देख लेते थे मेरे को कुछ लाइंस पंक्तियाँ वंक्तियाँ पढ़ते हुए. I could have been anything. I could have been a musician. I even record my own music these days That's great. when I find time. You know,
So there are still a lot of aspirations in me. I have filtered them because of a So lot of one reasons. quote or shairi would you like to share with शायरी, us? Yes. ओके ओके, राइट नाउ मेरे मन में मेरी लिखी कुछ पंक्तियां आ रही हैं. Will hear. आई डोंट नो इफ यू फाइंड एनी एडवर्बेटिम सिमिलैरिटी इन दीज लाइंस एनीवेयर. मेरे मन में है, मैंने लिख दी. अंधेरों में गुम सितारों को, अंधेरों में गुम सितारों को चमकना सिखा देती है. अंधेरों में गुम सितारों को चमकना सिखा देती है जिंदगी जब बीतती है मेरे दोस्त. जिंदगी जब बीतती है मेरे दोस्त लिखना सिखा देती है. सो एक छोटी सी 2 लाइन से कपलेट है. तो दिस इज अबाउट इट दैट anybody can write if they have the right flow of thought, the right direction of thought, the right choice of words. And obviously choice of words से आपकी reading matter करती है. How many new words you come across when you read. I remember my father quoting me an example of Shri Baba Saheb Ambedkar. He has 18,678 books, if I'm not mistaken, what he told me, what Papa told me. And there is a Rajgriha of his books, and he said that every book you find, you will find something scribbled in pencil. So always be a good reader, be a voracious reader, be an avid reader, and always be on the lookout for new words. Because again, my father told me that whatever you read, be it belonging to your subject or not belonging to your subject, trust me, beta, some point in your life you will find use for it, and you must have thanked God कि yes, मैंने ये पढ़ा, मुझे याद है. So be a voracious reader. आपने मुझसे पूछा था कि स्टूडेंट्स ने क्या माइंडसेट रखना चाहिए. देखो, आई विल टेल यू, ये 2 लाइंस मेरे थ्रू आ रही हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. फॉर एनीबडी हु इज गोइंग इन टू अ डायरेक्शन अननोन, हमारे लिए, सबके लिए तो यही होता है कि हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो इट्स लाइक वी काइंड ऑफ फेस एप्रीहेंशन फ्रॉम द पीपल अराउंड अस, फ्रॉम आवर इनर डीमंस, ओन इनर डीमंस. तो उसके लिए 2 लाइन्स हैं. एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड बेबाकी हियर. बेबाकी मीन्स अनफॉल्टरिंग, मतलब बिल्कुल एक फ्लो में आनी चाहिए चीज़ें, उस तरीके से. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का उच्चांक. तो मेरी बेबाकी को, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मेरी बेबाकी को मेरा गुरूर ना समझ, मेरी बेबाकी को मेरा गुरूर ना समझ, ये हथियार है मेरा. आई मीन आवर माइंड सेट इज आवर वेपन, राइट. मेरी बेबाकी को मेरा गुरूर ना समझ, ये हथियार है मेरा, कल तक मैं सबकी सुनता था. मेरी बेबाकी को मेरा गुरूर ना समझ, ये हथियार है मेरा, कल तक मैं सबकी सुनता था, अब मैं अपनी करता हूँ. So this should be your mindset कि बस करना है तो करना है. We'll follow this for sure. Sure. Thank you. So my next question is how you handle stress and keep yourself motivated during very stressful and demanding situations. Stress is a multifaceted word and a very fancy word, I'll say. Stress comes from a lot of things. If you do good things, you get stressed about how others will perceive it. If you do not so good things, you yourself feel bad about it. Oh my God, how am I going to feel about this later on? So stress कहीं से भी आ जाता है, बहुत बेशरम है, बहुत दिमाग है. To handle stress, I'll tell you, just be true to yourself. कभी किसी का बुरा मत करो. कभी ऐसा कुछ मत करो कि आपको खुद से आंखें मिलाने में, आईने में खुद से आंखें चार करने में झिझक हो. आफ्टर अ 36-year-old span, this year I'm going to be 37, not a very big number, but आपसे बड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि see, experience does not come from years. Experience comes from the people who surround you, and not just the people who surround you, the quality and the cadre of people who surround you. I have been blessed that I am surrounded by such a good cadre of people, such a good level of people whom I can look up to anytime, whether it be anybody. So, the quality of experiences which come, the quality of, thoughts which come, the direction, the flow of thoughts which come, the perspectives which come, they tend to influence you firsthand. And this indeed defines you, that what to do and what not to do. And again, a famous person has said that if you want to be, true, or if you want to be bang on perfect should not be the word, bang on confident कि यार ठीक है, ऐसे ही करना है, तो अपने नॉट टू डू की लिस्ट बना लो. मतलब डूज एंड डोंट्स जिसको कहते हैं ना, तो अपने डोंट्स की लिस्ट बना लो, तो आपकी डूज की लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है. सो इट इज क्रिस्टल क्लियर लाइक दैट. Yes, so that was really knowledgeable. My next question is what legacy or message will you like to leave for students? लेगेसी देने लायक तो हम इतने बड़े हुए नहीं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ फादर फिगर्स अराउंड अस, लुक अप टू देम,
India has a, I'll not say constellation, I'll not even say galaxy, I'll say a whole universe of father figures. There is Mahatma Gandhi, there is Lal Bahadur Shastri. There are so many good people, great people, thoughtful people, people with vision. And I told you, read about these people. You'll come to know the various facets of their life, the various aspects of their life, how they reacted to when they were faced with certain situations in their life. There are a lot of situations we face, and it is for the first time, and we are clueless here what to do about it. Reading about big people, reading about you know influential people for that matter, reading about effective people for that matter, it helps you a lot. It helps you define and refine your outlook towards life. So yes, it helps. लेगेसी की जहाँ तक बात है तो वो समय बताएगा यार क्या छोड़ के जाऊंगा मैं. आई थिंक आई एम नॉट दैट बिग इनफ टू इवन स्पेल आउट दिस वर्ड. Yes, sir. That was really kind of greatness of you. So we'll start with rapid fire. Tea, coffee. You choose one. Coffee. Okay. Black. Stethoscope or white coat? Stethoscope. One word you would like to describe your students for? Potential. Emoji you would use to describe yourself? हड्डी मुंह वाली स्कल. रेडियोलॉजिस्ट इसलिए. So favorite medical drama or book? ड्रामा और बुक. नेटफ्लिक्स का सीजन चलेगा कोई? Yes, sir. Anything. अच्छा. वैसे अगर कोई मूवी मुझे पूछे कि गौरव तुम कभी भी कितने भी बार देख सकते हो तो दैट इज अंदाज अपना अपना. अपने समय की फ्लॉप रही थी बट ठीक है. Yes, sir. Any book or quote which is kind of your life guidance? बुक और कोट. Yes. बुक तो द फर्स्ट बुक आई एवर रेड फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज वाज ड्रैकुला बाय ब्राम स्टोकर. और आप बिलीव नहीं करोगे, आई डिड नॉट हैव द बुक. आई रेड इट ऑन अ स्मॉल स्क्रीन ऑफ एन आईफोन 2G था शायद, छोटा वाला. उस पे स्क्रॉल कर करके पढ़ी थी. So things you would do on your day off or a holiday from hospital. Holiday from hospital or a day off? Well, I would like to sit on my PC and have Dota 2 games all day long with my team on Discord. I have got worldwide friends on Discord. I have Wow. 2-3 friends from Afghanistan. I have some friends from Germany. I have few friends from Gurgaon, few friends from Bangalore, few friends from Mumbai. So all of us here now are very good at playing Dota 2. Dota 2 is like a game, Defense of the Ancients 2. खेलते हैं, map based game है. I think your generation will pick up what is Dota 2. I am too old for it, but I still love it. Yes, sir. So thank you so much Thank you for so your much. Thank you. thank you so much for your honorable time that you've given to us for our podcast, and it was really Pleasure. insightful, knowledgeable, and inspiring for us. I hope I did not bore you. No, sir, I it went was too so much into interesting. philosophy. Thanks so much. Thanks. So I'm so sure like our followers must have learned so much from this. I hope so. And if you guys had really enjoyed, stay tuned, connected, share, subscribe, and like our video. And this Arundhati Rakhanpal signing off, but still stay curious, keep learning, keep growing, and keep healing. Thank you. Hasta la vista.